السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 171 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یاسین، آیت 1 سے آیت 83 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر 70 درجے برتری حاصل ہے۔ ہر 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ گھوڑے کے 70 سال دوڑنے کے بعد طے ہونے والی مسافت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! اتنی زیادہ برتری اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے عالم کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب میں جنت الفردوس میں ہم سب کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین اور ہم سب کے رشتہ داروں کو اللہ پاک اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی۔ تو سورہ یاسین دراصل یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے اور وہ ان نشانیوں پر غور کرا کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لے۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے حقدار بن رہے ہیں۔ سورہ یاسین ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو لوگ اپنے سینوں سے لگا کے رکھتے ہیں۔ لوگوں نے سورہ یاسین کے بارے میں اتنا غلو کیا، ٹھیک ہے الحمدللہ ضعیف حدیث ملتی ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، قرآن کریم کا اس کو پڑھنے سے کیا ہے، جیسے ہر چیز کی ایک دل ہوتا ہے تو قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو ایک حدیث ملتی ہے ترمذی کی، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، اس کے جو راوی ہیں صرف اور صرف 1 یا 2 ہیں، تو اس کو بہت بڑے اسکالر ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں کیا ہے حد سے تجاوز کیا، انہوں نے پورے قرآن کو پیچھے رکھا اور چھوٹی سی پتلی سی کتاب میں ایک سورہ یاسین کو چھپایا اور پھر اس کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھا۔ وہ اس کو حفظ کرتے ہیں، وہ اس کو یاد کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے سینوں سے لگا کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پوری قرآن با حکمت نازل فرمائی، اللہ نے ایک ایک حروف کو کیا ہے جو کفار مکہ ان کے لیے چیلنج بنایا، اس پہ وہ لوگ غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ بس سورہ یاسین کی فضیلت کی وجہ سے وہ بھی آتھینٹک نہیں ہے، پوری طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں آتھینٹک ہے، کیونکہ راوی بہت جو ہے کمزور ہے، تو روایت کے حساب سے بہت کمزور ہے۔ اور اسی کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، قرآن سے دور ہو گئے۔ سورہ یاسین صبح شام دوپہر 5 وقت کی یہاں تک کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب کوئی فوت ہونے والا ہوتا ہے اس کے سرانے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ یاسین ہے نا، وہ دراصل کیا ہے، یہ زندوں کے لیے ہے، جو زندہ شخصیات ہیں تو ان کے سنانے کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کام کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، یا قبرستانوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جو فوت ہونے والا ہوتا ہے اس کو بیٹھے سنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس نے کبھی لائف میں کبھی قرآن کریم نہیں سنا ہو، لیکن جب وہ مرنے لگتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی اس کا جو موت کی تکلیف ہے وہ آسان ہو جائے، تو اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم تو اللہ نے نازل فرمایا نا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، نہ کہ ایسے شخص کے لیے جس نے زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس کے سرہانے پہ بیٹھ کے انسان کو سورہ یاسین پڑھے۔ تو اس لیے قرآن کریم نہیں آیا۔ آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو دراصل کیا ہے، زندوں لوگوں کے لیے ہے۔
जो इंसान दुनिया से जा रहा है, रुखसत हो रहा है, इसमें तो उसके लिए कोई भी नसीहत और इबरत नहीं है। वो तो क्या, उसका तो जो अमाल नामा बनी होने वाला है ना। और जो कब्रों में पड़े हैं, उनके तो बिल्कुल ही कुछ फायदा देने वाला नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा होता है ना, उसको ये फायदा दे रहा होता है, क्योंकि कुरान का एक एक जो लफ्ज है, जो पढ़ रहा होता है उसको फायदा होता है। और फिर जो औलाद है, जैसे मिसाल के तौर पे, उसके लिए भी सदका जारिया बन जाती है चीजें। तो कुरान करीम के बारे में हमारे जो माशरे में बहुत सारे लोगों ने गुलू किया है कि कुरान को इंसानों ने ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ सूरह यासीन के पीछे लग गए हैं। तो सूरह यासीन दरअसल पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपने जो है ना, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे सब्जेक्ट के बारे में नाजिल फरमाया है, जैसे मसलन मिसाल के तौर पे तौहीद है, रिसालत है और आखिरत है। इसके बारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। और वाकया भी पढ़ेंगे हम लोग कि रसूलों ने किस तरीके से तबलीग की, और फिर उस तबलीग के बाद उन रसूलों को कैसे ख़त्म कर दिया गया उन बस्ती वालों ने। ये तमाम के तमाम हम सब इसमें नसीहत हासिल करेंगे। तो ये क्या है, जिंदा लोगों के लिए है कुरान, दरअसल जिंदा लोगों के लिए, ना कि मुर्दों के लिए। आयत देखें, आयत नंबर 1 है यासीन। तो ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। कुछ लोगों का कहना है ये यासीन दरअसल इससे मुराद इंसान है, और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं यासीन इससे मुराद क्या है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये लोगों की अपनी अपनी क्या है, बातें हैं, अकवाल हैं। लेकिन सही और दुरुस्त बात क्या है, हरूफ मुक़त्तिआत के माने हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि माने नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने हम सबको बताई नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी नहीं है। ये माने क्या है, जो जो हरूफ मुक़त्तिआत है, या यासीन का जो माना है, या तोहा का माना है, इस तरीके से हरूफ मुक़त्तिआत जहाँ जहाँ कुरान में आते हैं, इनके माने हैं। लेकिन ये गैब की खबरों में से हैं। इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है इसके माने क्या है। आयत 2 देखिए, कसम है कुरान बा हिकमत की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कुरान करीम की कसम खाई है कि कुरान मजीद को हिकमत वाला कहा गया है, इसलिए कि ना इसमें हिकमत की बातें बयान फरमाई गई हैं। आयत 3 देखें, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं। दरअसल मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शक करते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते थे और कहते थे लस्ता मुरसला। सूरह राद आयत नंबर 43 में कहते थे कि तू तो पैगंबर है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में कुरान हकीम की कसम खा कर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह के पैगंबरों में से हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ और फजल का इजहार है। पीछे देखिए आयत नंबर 2 में ना, वल कुरानिल हकीम, यहाँ पर अल्लाह ने कुरान की कसम खाई, और फिर अगला सेंटेंस क्या है कि बेशक आप रसूलों में से हैं। तो कसम खा कर अल्लाह ने कुरान की कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बेशक आप रसूल में से हैं। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ और फजल का इजहार है। अल्लाह ताला ने किसी भी रसूल की रिसालत के लिए कसम कभी नहीं खाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज और खसाइस में से है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इस बात के लिए, यानी कि प्रूफ के लिए कसम खाई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही इम्तियाज और खसूसी फजीलत है। आयत 4 देखें, अला सिराती मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हैं, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी क्या है, सीधे रास्ते पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैगंबरों के रास्ते पर हैं जो पहले गुजर चुके हैं, या ऐसे रास्ते पर हैं जो सीधा और मतलूब यानी जन्नत तक पहुंचाने वाला है। यानी ये रास्ता जिसकी रहनुमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए नाजिल किया है, और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पर हैं, और जितने भी दीगर अंबिया आए सब उसी रास्ते पर हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसी रास्ते की तरफ सबको बुला रहे हैं। आयत 5 देखें, ये कुरान अल्लाह की ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है। ठीक है, तो ये कुरान जो है दरअसल कुफार मक्का ने इस कुरान करीम को झुटलाया था ना। वो ये कहते थे ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये कुरान दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह खुद से लिखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान अल्लाह जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है। आयत 6 देखिए, ताकि आप ऐसे लोगों को डराइए जिनके बाप दादा नहीं डराए गए हैं सिवा उसकी वजह से ये गाफिल हैं।
تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنایا ہے کہ اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. اس لیے نا ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا. یعنی کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے نا اس کے بعد جو دوسرے پیغمبر آئے وہ دوسرے جو رسول آئے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اسی چیز کو یعنی کہ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے. آیت دیکھیں 7. ان میں اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر دیں گے. جیسے سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. ٹھیک ہے, تو بات ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایسے بہت سارے سرکش تکبر کرنے والے لوگ ہیں جیسے ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, فرعون, حامان, نمرود, ہے نا. اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسولوں نے بات پہنچائی لیکن وہ ہٹ دھرمی ضد تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 8 ہے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں, پھر وہ تھوڑیوں تک جیسے کہ ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں, توق پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جیسے لگتا ہے ان کی گردنیں اکڑ ہی گئی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں, یہ جو نافرمان لوگ ہیں, جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا, جن کے مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی ہے, ان کے ہدایت کی طرف جو پہنچنا ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ شخص مثال دی گئی ہے جس طرح کی وہ شخص ہے جس کی گردن میں توق ڈلا ہوا ہے, توق ڈال دیا گیا ہو اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردنوں سے اس کی تھوڑی کے نیچے باندھ دیا گئے ہوں اور وہ سر کو اوپر اٹھائے تو اس کا سر اوپر کو اٹھا رہ جائے, نہ نیچے کی طرف دیکھ پائے اور نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے. بالکل جو ہے اس کا جو سر ہے اسٹریٹ ہو گیا ہے, کہیں بھی گھما نہیں سکتا اس توق کی وجہ سے. تو جس طرح ایسے لوگ نیچے کی طرف دیکھ کر بھی راہ راست پر نہیں چل سکتے, اسی طرح مشرکین مکہ بھی اللہ کی ہدایت سے لاکھوں کوسوں دور ہے, وہ کبھی بھی حق کی طرف مائل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر توق سے مراد ٹھیک ہے. تو جو توق ہے دراصل ضد ہٹ دھرمی اور تکبر کی علامت ہے, اس وجہ سے کہ وہ حق سامنے آیا اس کو نہ دیکھتے ہیں, نہ ایکسپٹ کرتے ہیں, نہ ہی سنتے ہیں. آیت دیکھیں, آیت نمبر 9 ہے. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے سو وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کرتی خوبصورت کر دیا گیا ہے. گویا یہ ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے نہ وہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت کو حاصل کرتے ہیں, کیونکہ نہ آخرت کا کوئی بھی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے. صرف اور صرف دنیا کے پیچھے دل لگائے بیٹھے ہیں اور ان کا مقصد اور ان کی جو گول ہے, وہ جو ان کی خواہشات ہے, سب کچھ کیا ہے؟ دنیا ہے. تو دنیا ان کے اور ہدایت کے بیچ میں ایک آڑ بن گئی ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 10 ہے. اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائے ان کے لیے ڈراوا کیا ہے؟ بے فائدہ ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے.
आयत 11। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। तो आप उसको मगफिरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो क्या है, जो खुद अल्लाह से डरने वाला है। ठीक है, तो जो मोमिन होते हैं तो अल्लाह से वो डरने वाले होते हैं, वो अल्लाह के अजाब से हमेशा 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 डरते हैं और नेक अमल करने के बावजूद वो डरते हैं, और इस बात से भी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अमाल, जो हमारे अमाल है, ये कहीं अल्लाह के बारगाह में रिजेक्ट ना हो जाए, और कि वो उसकी वजह से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये जो सदका खैरात किया है, हमने जो ये इबादत की है, कहीं अल्लाह ताला की यहाँ जो है ये सारे के सारे अमाल हमारे रिजेक्ट ना हो जाए। मोमिन के अंदर ईमान और खौफ दोनों होते हैं, जबकि मुनाफिक बद अमल भी हो जाता है और बेखौफ भी हो जाता है। जब इंसान अल्लाह का खौफ इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह ताला की रहमत पाता है, और गायबाना तौर पर डरने वाले को अर्श का साया भी नसीब होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब आदमी ऐसे हैं जिन्हें कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साय में जगह दी जाएगी, जबकि उसके अर्श के साय के सिवा उस दिन कोई साया नहीं होगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसको किसी बुलंद मर्तबा वाली खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ बुलाया और उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो ये है अल्लाह से गायबाना तौर पर डरने वाले, जिनके लिए यहाँ पर बख्शिश का वादा है। ठीक है, तो अल्लाह से जो डरने वाले होते हैं, तो वो अकेले में भी अल्लाह से डरते हैं, महफिल में भी अल्लाह से डरते हैं, और वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। नेकियां करके भी वो अल्लाह से डर रहे होते हैं, कभी भी तकब्बुर में और गलत फहमियों में मुब्तला नहीं होते हैं वो। आयत देखें, आयत नंबर है 12। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और उनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में जब्त कर रखा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमा रहे हैं यहाँ पर कि बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कयामत के दिन सारे के सारे मुर्दों को जिंदा करेंगे, सारे के सारे जितने भी जो फौत शुदा लोग हैं सबको अल्लाह सुब्हाना ताला उठा करके खड़ा कर देंगे। और यहाँ पर एक तरह से ये भी है कि जो काफिर होता है उसका दिल क्या होता है, मुर्दा होता है, और जब अल्लाह ताला की हिदायत पहुंचती है तो फिर वो क्या होता है, जिंदा हो जाता है, उसका दिल जिंदा हो जाता है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हान ताला की वही इलाही के जरिए एक मुर्दा दिल भी क्या होता है, जिंदा करता है, जिंदा होता है। तो बेशक अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। और अल्लाह सुब्हान ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वनक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम। माँ कद्दमू, यहाँ पर देखें कि माँ कद्दमू आसारहुम, कि हम लिखते हैं जाते हैं जो वो अमाल करते हैं, और जो कुछ भी वो लोग करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको लिखते जाते हैं, और जिनको लोग आगे भेज देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक के अमाल को लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो लफ्ज आया है माँ कद्दमू, और इससे मुराद वो अमाल हैं जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में करता है। ठीक है, माँ कद्दमू से मुराद वो अमाल है जो इंसान खुद अपनी जिंदगी में करता है, और व आसारहुम से मुराद वो अमाल है जिनके अमली नमूने अच्छे या बुरे वो दुनिया में छोड़ जाता है। ठीक है, अमली नमूने में क्या हो जाएगा, इसमें वो अमाल चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो वो दुनिया में छोड़ जाता है, और उसके मरने के बाद उसकी इत्तिबा में लोग वो अमाल कर रहे होते हैं। जिस तरह हदीस में भी है कि जिसने इस्लाम में कोई नेक तरीका जारी किया उसके लिए उसका अजर है, और उसका भी जो उसके बाद उस पर अमल करेगा, और बगैर उसके कि उनमें से किसी के अजर में कमी हो। और जिसने कोई बुरा तरीका जारी किया उस पर उसके अपने गुनाह का भी बोझ होगा, और उसका भी जो उसके बाद उस पर अमल करेगा बगैर उसके कि उनके उनमें से किसी के भी बोझ में कमी हो। सही मुस्लिम की हदीस में से है। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के। एक पहला क्या है, इल्म, जिससे लोग फायदा उठाएं, यानी कि दीन का इल्म। ठीक है, दुनियावी एजुकेशन की कोई बात नहीं, दीन का इल्म है, चाहे वो तजवीद है, चाहे वो हदीस का है, चाहे वो कुरान का है, दीन का कोई भी इल्म दूसरों को अगर पहुंचाता है तो फिर वो क्या है, उसके लिए सबका जारिया हो जाता है। दूसरा ये है कि नेक औलाद, यानी उसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम पर क्या है, फोकस किया है।
दीनदार औलाद छोड़कर मरा है तो ये औलाद मरने के बाद उस शख्स के लिए सदका जारिया होगी। तीसरी चीज ये कि सदका जारिया, सदका जारिया ये कि मतलब कि किसी दीन के कामों में उसने लगाया माल। देखिए माल तो सब लोग बहुत खर्च करते हैं, और शादी वगैरह में या किसी सेलिब्रेशन में तो इंसान उड़ाता है बहुत ज्यादा घूमने फिरने में, लेकिन जब माल खर्च करा तो मतलब मुराद इससे सदका किया, यानी कि दीन की सर बुलंदी में उसने अपना माल को खर्च किया, या लोगों के फायदे के लिए उसने कोई कुआं वगैरह खुदवा दिया, पानी वगैरह, नल वगैरह, हैंडपंप, समरसेबल, ठीक है, इस तरीके से कोई भी पानी का चश्मा उसने लगवा दिया, या दीन का कोई जो है मदरसा मस्जिद वगैरह इस तरह से उसने कोई भी तामीर करवाई जिससे लोग बाद में इबादत कर रहे हैं या दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ये क्या है, इस तरीके से जो भी माल अल्लाह के राह में खर्च किया जाता है, दीन की सरबुलंदी होती है, तो फिर क्या है, ये भी सदका जारिया है वो माल। तो उसके मरने के बाद वो जो मरने वाला शख्स है इन चीजों से फैजयाब होता है। और आसार का दूसरा मतलब ये भी है कि निशानात कदम है, यानी इंसान नेकी या बदी के लिए जो सफर करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कदमों के ये निशानात भी लिखे जाते हैं। जैसे अहद रिसालत में मस्जिद नबी के करीब कुछ लोग खाली जो थे, और दरअसल अहद रिसाल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मस्जिद नबवी के करीब कुछ जगह दरअसल खाली थी, तो बनु सलमा ने इधर मुंतकिल यानी कि इधर आने का इरादा किया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया। ठीक है, वो ये कहते थे कि हमारी जो मस्जिद है नमाज के लिए बहुत दूर पड़ रही है, तो चलो हम मस्जिद नबी के पास ही अपने घर को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना कर दिया, फरमाया कि दिया तक तबू आसारुकुम, यानी तुम्हारे घर अगरचे दूर हैं लेकिन वहीं रहो, जितने कदम तुम चल कर आते हो वो लिखे जाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, यानी इंसान जितनी दूर से मस्जिद जाता है पैदल चल के, तो वो जो कदम है उसके एक एक कदम अल्लाह ताला के यहाँ लिखे जा रहे होते हैं। कोई भी नेकी के तरफ बढ़ने वाले कदम अल्लाह क्या लिखे जा रहे हो, तो सुभान अल्लाह। तो आप सब भी माशाल्लाह इल्म हासिल करने के लिए अपने जितने भी कदम कुरान की क्लास की तरफ लाते हैं तो ये सारे कदम आपके क्या है, आसार हैं, कि आप दुनिया से चले भी जाएंगे तो ये क्या है, आपके अच्छे आसार हैं, जो ये क्या है अल्लाह तबारक ताला क्या ये लिखे जा रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आयत देखिए, आयत नंबर है 13। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों का बस्ती वालों की मिसाल उस वक्त बयान कीजिए जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। तो आयत नंबर 13 से आयत नंबर 17 तक एक बस्ती वालों का वाकया है, और बहुत सारे रसूल इस बस्ती की तरफ आए। और ये बस्ती की जो जिक्र इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं ताकि अहले मक्का ये समझ लें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अनोखे रसूल तो है नहीं जो पहली मर्तबा आए हैं, बल्कि रिसालत नबूवत का ये सिलसिला तो बहुत पुराने से चला आ रहा है, पुराने जमाने से चला आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि वो कुफारे मक्का को एक बस्ती वाले का किस्सा सुना दे जहाँ के रहने वालों ने कुफ्र और शिर्क पर इस तरह इसरार किया था जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूलों के साथ वैसा ही सुलूक किया जैसा कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें चीख यानी चिंगाड़ के जरिए से हलाक कर दिया उस कौम को। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन कुफारे मक्का का भी यही अंजाम हो जैसा इन बस्ती वालों के साथ हुआ। तो इस बस्ती के रहने वालों ने कुफ्र और शिरक में वो मुब्तला थे और दीगर गुनाहों का इर्तिकाब वो करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए दो नबी भेजे, एक साथ दो नबी भेजे, जिनकी उन्होंने क्या किया, उनको झुटला दिया, उनकी तकजीब की, और उनकी तायीद के लिए तीसरा नबी भी अल्लाह ने भेजा। तो इन तीनों ने जो बस्ती वाले हैं उनको यकीन दिलाया कि वो वाकई में अल्लाह के रसूल हैं। तो लोगों ने उनकी भी क्या है तकजीब की, उनको झुटला दिया और कहा कि तुम नबी कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारे ही जैसे एक मामूली इंसान हो, और अल्लाह ने किसी इंसान को नबी बनाकर इस मतलब कि इस दुनिया में नहीं भेजा है, और कोई मामूली इंसान जो है ना अल्लाह का नबी नहीं हो सकता है। ये तो तुम्हारी क्या है, झूठ है, इफ्तरा पर्दाजी है, यानी कि उस कौम के लोगों ने रसूलों को झुटला दिया। जब इनका इनकार बढ़ा तो रसूलों ने अपनी बात में मजीद जोर पैदा करते हुए कहा कि हमारा रब खूब जानता है कि हम बिलाशुबा तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और
हमारी जिम्मेदारी तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हम अल्लाह का पैगाम पूरी सराहत और वजाहत के साथ लोगों को पहुंचा दें। आयत देखिए, आयत नंबर है 13। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल उस वक्त का बयान कीजिए कि जबकि उस बस्ती में कई रसूल आए, यानी कि एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रसूल आए। आयत 14। जब हमने उनके पास दो को भेजा सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तायद की सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। आयत 15। उन लोगों ने कहा, यानी बस्ती वालों ने कहा कि तू तो हमारी तरह मामूली आदमी है और रहमान ने तो कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम क्या मेरा झूठ बोलते हो। आयत 16 देखें। उन रसूलों ने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। आयत 17। और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। ठीक है, तो रसूलों ने कहा कि हमारे जिम्मे तो सिर्फ क्या है, सीधे सीधे बात को, अल्लाह की जो बात है, अल्लाह ने पैगामात पहुंचाने को कहा है, हमारा काम तो बस क्या है, तुमको पैगाम पहुंचा देना है। तो इस आयत में हमारे लिए सबक है। कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोगों को बात नसीहत कर रहे होते हैं और फिर नसीहत लाख करने के बाद भी जो सामने वाला इंसान है वो बुराई छोड़ता नहीं है और नेकी की तरफ माइल नहीं होता है। तो हमारे लिए इसमें सबक है कि हमारा काम क्या है, अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है। हिदायत देने वाला अल्लाह ताला है, हिदायत अल्लाह के अख्तियार में है। नेकी करने की जो तौफीक होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, बुराई से बचने की तौफीक होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। बस हमारा काम तो क्या है, पहुंचा देना है। आयत देखिए, आयत नंबर है 18। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त सख्त तकलीफ पहुंचेगी। तो उनकी जो कौम के लोग थे, तो उन्होंने इस तरीके से रसूल से इस तरह से बदसलूकी की और बुरी बातें कही। तो काफिरों ने रसूलों की ये बात सुनकर कहा कि हम तो तुम्हारी आमद को अपने लिए क्या समझते हैं, बदशगुनी समझ रहे हैं। जब से तुम लोगों ने इस शहर में कदम रखे हैं, बारिश रुक गई है। और वो रसूल क्या है, उन्हें 10 साल तक तकरीबन अल्लाह ताला की दीन की तरफ बुलाते रहे, लेकिन हक की तरफ माइल होने की बजाय उनका तकब्बुर और गुरूर बढ़ता चला गया। एक दिन बस्ती वालों ने रसूलों से कहा कि अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आए और अपनी तहरीर बंद न की तो हम लोग तुम्हें संसार कर देंगे, पत्थरों से मार मार के तुम्हें क्या खत्म कर देंगे, तुमको सख्त सजा देंगे। तो रसूलों ने कहा कि तुम्हारी शामत और पकड़ तुम्हारे कुफ्र और रसूलों को झुटलाने की वजह से है, और बारिश का रुक जाना और कहर साली तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। क्या तुम लोग सिर्फ इसलिए हमें हमारे वजूद से बदशुगनी ले रहे हो कि हमने तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया है और उसकी वहदानियत की दावत दी है। हकीकत तो ये है कि तुम लोग कुफ्र और नाफरमानी में हद से गुजर गए हो। तो जो ऐसी कौम थी ना, तो वो खुद रसूलों को ही क्या कहने लगे कि रसूल क्या है, वो नहूस है, मतलब कि अ, बदशगुनी लेने लगे वो रसूलों से। तो जैसे मिसाल के तौर पे आज हमारे माशरे में होता है ना कि चाहे इंसान कितना भी इंसान नाफरमानी कर रहा, अगर कोई अल्लाह वाला आके उनको अच्छी बात पहुंचाएगा, बात के बारे में कहेगा, तो वो कहते हैं, बहुत से नाफरमान लोग हैं वो कहेंगे ये दीनदार लोग जो है ना अल्लाह ताला के, क्या है ये जो मुत्तकी लोग हैं, ये क्या है, बस क्या है, मनहूस हैं, इनकी वजह से हमारे क्या ये हो गया जब से ये आ गए। मतलब कि आज के दौर में बहुत सारे जो नाफरमान लोग हैं वो दीनदार और अल्लाह ताला के मुत्तकी बंदों को मनहूस समझते हैं, जैसे इस कौम के लोगों ने अपने रसूलों को मनहूस कहा, नहूसत कहा, बशगनी ली। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे इरशाद फरमाया, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, यानी उनकी जो कौम थी उन्होंने अपने रसूलों से कहा। तो आप देखिए कि इस्लाम ने ना बदशगुनी और नहूसत का अकीदा रखने से मना फरमाया है, और जबकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में ये शगुन और बदशगुनी क्या है, बहुत ज्यादा हम लोगों के माशरे में राइज है। शादी बिया बारात और छठी चिल्ला कुछ भी होता है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अच्छे काम करने के लिए जा रहा है, तो क्या है, शगुन और अपशगुन हम पहले ही लेते हैं ना। बदशगुनी आप देखिए कोई चीज नहीं है, जिस काम का इरादा किया जाए उसे कर गुजरे। बदशगुनी की वजह से उससे बाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ना बदशगुनी तो क्या है, शिर्क है। इस सिलसिले में बहुत सारी बेहतरीन जो अहादीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी कोई चीज नहीं है। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर
102 है इसका नंबर। ठीक है। और फिर इसी तरह से एक और हदीस मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी महज एक वहम है जो तुम्हारे दिल में गुजरता है, ये वहम तुम्हें किसी काम से ना रोके। मुस्लिम की हदीस है। तो हम सब जिस माशरे में रहते हैं ना, यहाँ पर भी शगुन अपशगुन की चीजें राइज हैं। मसलन दूध उबल गया, या कौवा छत पर बोल गया, या हाथ में खुजली हो रही है, या ये सब क्या है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, तो इंसान अच्छी चीजें समझता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या हमें माल मिलने वाला है, या कोई जो है मेहमान आने वाला है, कुछ अच्छी खबर सुनाई देगी, इस तरीके से अच्छी चीजें लेते हैं। फिर इसके बरकस, इसके अपोजिट, अगर बिल्ली रास्ता काट गई, या शीशा टूट गया, या कोई छींक दिया, या कोई पीछे से टोक दिया, या फिर किसी जो बेवा औरत है उसकी शक्ल सवेरे सवेरे देख लिया, तो फिर इस तरह से कहते हैं कि अब तो हमारे साथ क्या है, बुरा होने वाला है। तो इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी जो शगुन और अपशगुन आज हमारे मुसलमान माशरे में इसी तरह से बीमारी की तरफ में लोग मुब्तला हैं, जबकि ये शगुन और अपशगुन इसको हमारी जो शरीयत है रिजेक्ट करती है। ये तो सिर्फ क्या है, हिंदुओं के ये अकीदे हैं जो मुसलमानों ने ले लिए हैं। आप देखिए कि हिंदू किस कदर ये इस तरीके से उनके यहाँ माना जाता है ना, मुसलमानों ने भी साथ में रह रह करके ये सब चीजें सीख ली हैं। हालांकि हमारी शरीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस शगुनीक तो क्या है, महज एक वहम है जो तुम्हारे दिल में गुजरता है, ये वहम तुम्हें किसी काम से ना रोके। ठीक है ना, एक वहम है, उसको झाड़े, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, और अपना जो काम करने चल रहे हैं उसे कर गुजरे बस। आयत देखिए, आयत नंबर है 19। उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही है, क्या उसको तुम नहुसत समझते हो कि तुम को नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। आयत 20 देखें। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ए मेरी कौम, उन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते हैं और वो राह रास्त पर हैं। तो इस बस्ती के एक किनारे पर एक मर्द सवारी रहता था, जिसका नाम हबीब बिन मूसा नजार था। जब उसने सुना कि बस्ती वाले अल्लाह के रसूलों के खिलाफ कत्ल की साजिश कर रहे हैं, तो ये मोमिन शख्स था, मर्द सवाले था, इसने अपनी कौम के जो लोग हैं बस्ती वालों को समझाया। आयत देखिए, आयत नंबर 22। मुझे क्या हो गया है जो मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और तुम सब उसकी तरफ लौटाए जाओगे। आयत 23 और 24 25 देखें। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसे को माबूद बनाऊं कि अगर रब रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके, और ना वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब ताला पर ईमान ला चुका हूँ। तो यहाँ पर इबादत सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। इन आयत का मजमून से यही पता चलता है। आयत नंबर 22 से 25 में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ इबादत जो है जिसके लिए है, वो सिर्फ किसके लिए हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीक, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के लिए हो सकती है। तो जो मर्द मोमिन था, जो मर्द स्वाले था, वो क्या है, लोगों को दावत का काम कर रहा है। वमा लिया ला आबुदुल लजी, कि मुझे क्या हो गया कि मैं अल्लाह की इबादत ना करूं, वही अल्लाह जिसने क्या है मुझको पैदा किया है। तो वो जो नेक बख्त जो शख्स था, जो मर्द मोमिन था, तो अल्लाह ताला के रसूलों की तकजीब जब लोग कर रहे थे और उनकी तरदीद कर रहे थे, तो वो जब उसने तौहीन देखी, तो वो जो शख्स था दौड़ता हुआ उनके पास आया, और उसने इस तरह से उन सब के बीच में तबलीग की। उसने कहा अपनी कौम से कि नबियों की तुम ताबेदारी करो, और साथ ही साथ उसने उन सबको, अपनी कौम को ताबेदारी की रगबत दिलाई, और वो अपने अमल और अकीदे को उनके सामने पेश कर रहा था, और उन्हें हकीकत से आगाह करके ईमान की दावत दे रहा था। वो कहता था कि मैं तो सिर्फ अपने खालिक मालिक अल्लाह की ही इबादत करता हूँ, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसी ने मुझे पैदा किया है, मैं उसकी इबादत क्यों नहीं करूं। फिर ये नहीं कि हम अब उसकी कुदरत से निकल गए, अल्लाह ताला की मैं इबादत क्यों ना करूं, जबकि उसी के इख्तियारात में हम उसी का हमारे ऊपर इख्तियार है। और फिर ये कि अब हम उसकी कुदरत से निकल भी नहीं सकते हैं, और बल्कि सब के सब लौटकर तो फिर क्या है, अल्लाह ही की तरफ जमा होने वाले हैं, उसी के पास जाने वाले हैं। उस वक्त वो हर भलाई बुराई का बदला देगा। और ये कैसी शर्म की बात है कि मैं उस खालिक और कादिर को छोड़कर औरों की इबादत करूं, जो ना तो ये ताकत रखते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई किसी मुसीबत को मुझ पर से हटा दे, ना ये कि उनके कहने सुनने की वजह से मुझे कोई बुराई पहुंचे। अल्लाह ताला अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता, कोई और रोक भी नहीं सकता, और ना मुझे वो बचा सकते हैं।
اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگوں تو مجھ سے بڑھ کر دراصل گمراہ اور بہکا ہوا اور کون ہوگا۔ تو بہترین یہ جو انداز ہے، اس طریقے سے مرد مومن نے یہ انداز اپنایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تبلیغ کا جو طریقہ ہے اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر آپ کسی میں تبلیغ کرنا ہے، کوئی ایسی جو قوم ہے اس کی طرف جب تبلیغ کرنے انسان جائے گا تو ساری کی ساری بات اپنے اوپر رکھ کر کہے گا۔ اس نے کہا کہ تو ہم میں سے جو ہر ایک جو شخص ہے تو وہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ تو اس طرح سے پتہ رنی اس نے اپنی طرف لے کے گیا، اور تاکہ کیا ہے اس طرح سے اس نے سب کو بتا دیا کہ تمہاری بھی پیدائش، میری پیدائش، اور ہم سب کی پیدائش کس نے کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ بات اپنے اوپر رکھ کر تبلیغ کرنے کا بہترین انداز ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اور جس کے پاس ہم سب کو واپس جانا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار اس بات کا ہے کہ ہم سب اسی کے آگے صرف جھکے، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکے، صرف اور صرف اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، اور صرف اللہ کے لیے روزے رکھیں، اور اس کے لیے قربانی کریں، اور اس کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بندوں کی خدمت کریں، بندوں کے کام آئے۔ ہمارا سب کچھ اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے، اسی سے ہم دعا کریں اور اسی سے ہم فریاد کریں، مشکل وقت میں بھی صرف اور صرف اللہ کو پکاریں۔ تو یہ تمام امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 26۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کہ کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو مرد صالح تھے، مرد مومن تھے، تو اب وہ ایک دم سے ابھی وہ تبلیغ کر رہا قوم کے بیچ میں، اور یہاں سے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے کہا جا رہا ہے جنت میں چلا جا۔ تو دراصل حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار نے اس مرد مومن کو بری طرح مارا پیٹا اور اس کو گرا کر اس کے پیٹ پر چڑھ بیٹھے، پیروں سے اس سے رونے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو ہے روح قبض کر لی اور اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر دیا اور امن و چین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا۔ جنت اس کے لیے کھول دی گئی اور داخلے کی اجازت اس کو مل گئی۔ اپنے ثواب اور اجر کو اور عزت و اکرام کو دیکھ کر پھر اس کی زبان سے نکل گیا کہ کاش کہ میری قوم یہ جان سکتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا، اکرام کیا ہے۔ تو اس نے کہا اولا یا لیتا قومی یعلمون، کاش میری قوم جو تھی یہ جان لیتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا میرے اوپر کیا ہے، بخشش کیا، مجھے بخش دیا، مجھے انعامات دیے۔ اور اب آیت دیکھیں، آیت نمبر 27 میں فرما رہا ہے وہ شخص بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، مجھے معاف کر دیا، مجھے جنت دی، یہ ساری نعمتیں مجھے ملی، کاش میری قوم جو ہے وہ جان لیتی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو مومن شخص تھا یعنی مر گیا، اور اس کی قوم نہیں اس کو مار ڈالا، اس کے قوم کو وہ تبلیغ کر رہا تھا، خیر خواہی چاہتا تھا، لیکن خیر خواہی کے بدلے کیا ملا اس کو؟ صلہ۔ اس کی قوم والوں نے اس کو مار ڈالا، اتنا مارا کہ اس کی جان ہی لے لی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے اور اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ ایک سچے دائی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کو لوگوں کی طرف سے کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے۔ دراصل ایسی خیر خواہی پیغمبروں کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر جو ان کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے کہ انسان ہلاکت چاہنے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہمیں کوئی دو تانے بھی اگر دے دیتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی تو ان کے گھر کی طرف ہم دیکھیں گے بھی نہیں، نہ ان کی ہم بات سنیں گے، نہ ان کی طرف ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے نا، ہمارا تو یہ رویہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے، ایک بہترین جو دین کا داعی ہوتا ہے وہ لوگوں سے درگزر کرتا ہے، ان کے لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ تو یہ مرد مومن ہے، آپ دیکھیے کتنا مطلب کتنا بہترین رویہ، اس کا بہترین کردار یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے قوم والوں نے اس کو مار ڈالا، وہ مر گیا، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اس کو جنت میں پہنچایا۔ جنت کی ابدی نعمتیں مل جانے کے بعد، جنت میں پہنچ جانے کے بعد جب اللہ نے اس کو انعامات دیے تو پھر بھی وہاں اس کو یہ نہیں ہوا کہ میری قوم نے مجھے مار ڈالا، چلو مجھے اللہ نے جنت دی، اب ٹھیک ہے ان کو جہنم پہنچا دیا جائے، نہیں، وہاں بھی وہ ان کے لیے خیر خواہی سوچ رہا ہے کہ کاش میری قوم جو ہے جان جاتی، کہ میرے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی، کاش میری قوم بھی جو ہے اچھے اچھے کام کرتی، اچھے جو ہے نا رسول کی اتباع کرتی اور نیکیاں کرتی، اور پھر کاش میری جو قوم ہے وہ بھی یہاں پہ جہاں پہ میں پہنچا ہوں وہاں یہ بھی پہنچ جاتی میری قوم۔
तो बेहतरीन दीन का दाई इसी तरह से होता है, हमेशा उसके अंदर लोगों के लिए खैर ख्वाहियां होती हैं, लोगों का भला चाहना होता है। मोमिन दरअसल सबके लिए खैर ख्वाह होते हैं, वो धोखेबाज बदख्वाह नहीं होते हैं। उस अल्लाह वाले शख्स ने जिंदगी में भी कौम की खैर ख्वाही की, मरने के बाद भी उनका खैर ख्वाह रहा। वो कहता है कि काश मेरी कौम ये जान लेती मुझे किस चीज के अजर सवाब में मेरे रब ने बख्श दिया है। काश मेरी जो कौम है वो अल्लाह पर ईमान ले आती, रसूलों की बात मान लेती, रसूलों की इत्तिबा करती, कौम की हिदायत की किस कदर वो ख्वाहिशमंद था वो शख्स। आए देखिए, आयत नंबर है 28 और 29। उसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी, यकयक वो सब के सब बुझा दिए गए। तो मर्द सवाले जो शख्स था उसने लोगों के बीच जबरदस्त तबलीग की और तबलीग करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो अल्लाह तबारक ताला जो नेकी करने वाले होते हैं उनके अजर जाया नहीं करते हैं। हालांकि वो शख्स को मार दिया गया उसकी ही कौम ने और नाफरमान लोगों ने, और जो जब उसकी फौत हो गया तो फौत होने के बाद भी वो लोगों का खैर ख्वाह था। इसी तरह से एक वाकया मिलता है। हजरत उर्वा बिन मसूद सख्ती ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं अपनी कौम में तबलीग दीन के लिए जाऊं और उन्हें दावत इस्लाम दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कत्ल कर दें। जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का एहतिमाल ही नहीं, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो मेरी जो कौम मुझे मार दे या मुझे कत्ल कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना मुझे वो इस कदर मुझसे मोहब्बत करते हैं, उल्फत करते हैं और अकीदत है मेरे ऊपर कि अगर मैं सोया हुआ हूँ तो मुझे जगाएंगे भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छा फिर जाइए। और फिर ये जो सहाबा थे ये चल दिए। जब लात उज्जा और बुतों के पास से उनका गुजर हुआ तो कहने लगे ए मेरी कौम के लोगों, तुम उन बुतों को तर्क कर दो, छोड़ दो। ये लात उज्जा दरअसल कोई चीज नहीं है, इस्लाम कबूल कर लो और सलामती हासिल होगी। ए मेरे भाई बंधु, यकीन मानो कि ये बुत कुछ हकीकत नहीं रखते, सारी भलाई इस्लाम में है। अभी 3 ही बार उन्होंने सिर्फ इस कलमे को दोहराया था कि एक शख्स ने दूर से एक तीर चलाया जो उनके रगे अखल पे जाके लग गया और उसी वक्त वो शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ऐसा ही था जैसे सूरह यासीन वाला वो शख्स जिसने कहा था कि काश मेरी कौम मेरी मगफिरत और इज्जत को जान लेती। आयत देखिए, आयत नंबर है 30। बंदों पर अफसोस है, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। तो अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि उन बंदों पर अफसोस है। तो अंबिया किराम की बात ना मानने वालों पर यहाँ पर हसरत और अफसोस की बात की जा रही है। दरअसल हसरत निदामत का ये इजहार खुद अपने नफ्सों पर क़यामत वाले दिन अजाब देखने के बाद लोग करेंगे और कहेंगे कि काश उन्होंने अल्लाह के बारे में जो कोताही की थी वो ना कोताही की होती। मतलब ये है कि कयामत के दिन अजाबों को देखकर हाथ मलेंगे। तो इस तरीके से वो जो है लानत मलामत अपने ऊपर कयामत के दिन करेंगे। तो उसी अफसोस के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बंदों पर अफसोस है। आयत देखिए, आयत नंबर 31 है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी बस्तियां हमने गारत कर दी जो उनकी तरफ वापस नहीं लौटते। आयत 32, 33, 34, 35 देखें। और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। इनके लिए एक निशानी खुश्क मुर्दा जमीन है जिसको हम जिंदा कर देते हैं, जिससे अनाज निकालते हैं, जिसमें से वो खाते हैं। और हम उसमें से खजूर और अंगूरों के बागात पैदा करते हैं जिनमें हम चश्मे भी जारी कर देते हैं। आय 35 और 36 देखें। ताकि लोग उसके फल खाएं, उन्होंने अपने हाथों से उसे नहीं बनाया, फिर क्यों नहीं शुक्रगुजारी करते। पाक है वो जात जिसने हर चीज के जोड़े जोड़े पैदा किए हैं, और वो ख्वाह जमीन की उगाई हुई चीज हो, ख्वाह वो खुद उनके नफूस हो, ख्वाह वो चीजें जो वो ये जानते भी नहीं हो। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हर चीज को जोड़े जोड़े बनाया, यानी चाहे कुछ भी हो पूरी कायनात में, चाहे वो आसमानों में हो, चाहे वो जमीन की गहराइयों में हो, हर चीज को अल्लाह सुब्हान तआला ने जोड़े जोड़े बनाया है, सिवाय अल्लाह तबारक ताला की जात के। हर चीज का जोड़ा है, पेयर है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की जात क्या है, वो वहदहू ला शरीक है, वो अकेला है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों की तरह
जमीन की हर पैदावार में से नर और मादा क्या पैदा की, जो प्लांट होते हैं तो उसमें भी क्या है, मेल और फीमेल होते हैं। आसमानों और जमीन की गहराइयों में भी जो चीजें जो हम देख नहीं सकते हैं, जो गायब है, लेकिन जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को है, उसमें भी क्या है, जौजियत है, नर और मादा है। तो ये निज़ाम दरअसल अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है। बस तमाम मखलूकात क्या है, जोड़ा जोड़ा है, नबातात हो चाहे कुछ भी हो, ये सब क्या है, नर और मादा, यानी कि जोड़े जोड़े में है। हत्ता कि आखिरत की जो पेयर क्या है, उसका जो जोड़ा है वो दुनिया की जिंदगी है। आखिरत की जिंदगी का जो जोड़ा है वो, उसका पेयर क्या है, दुनिया की जिंदगी। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज का जोड़ा बनाया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो कोई भी मखलूक हो, हर चीज के जोड़े हैं। आयत देखें, आयत नंबर है 37। और उनके लिए एक निशानी रात है, जिससे हम दिन को अलग कर देते हैं तो वो अचानक अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो उसी राह पर चलता रहता है। ये अंदाजा गालिब बाइम अल्लाह ताला का है। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो घूम फिर कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। आयत नंबर 40 देखें, ना आफताब की मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और न रात दिन से पहले आ सके, और सबके लिए अब आसमान में तैरते फिरते हैं। सब के सब, ये जितने भी चांद सितारे सैयारे, सबके सब आसमान में तैरते फिरते हैं, सब तैर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक ताला की क्या है, तौहीद की निशानी है। अल्लाह ने सारे इंसानों का ध्यान इस तरफ लाए हैं कि तौहीद की तरफ देखो, क्योंकि ये अल्लाह तबारक ताला की क्या वहदानियत की निशानी है कि इंसान ही नहीं, और अल्लाह ताला की हर चीज, जो ये तमाम मखलूकात है, अल्लाह तबारक ताला की इताअत में लगी हुई है। आयत देखें, आयत नंबर 41। और उनके लिए निशानी है, यहाँ पर मुसलसल अब ये क्या है, अल्लाह तबारक ताला ने निशानी की तरफ इंसान को गौर फिक्र दिलाई है, आयात है। उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्ल को भी भरी हुई कश्ती में सवार किया। आयत 42, 43, 44 देखें। और उनके लिए उसी जैसी चीजें भी पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। अगर हम चाहते तो उन्हें डुबो देते, फिर ना तो कोई उनका मददगार होता, ना वो रिहा किए जाते। लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं, और एक मुद्दत तक के लिए उन्हें फायदे दे रहे हैं। तो अल्लाह तबारक ताला अपनी कुदरत की एक और निशानी यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समुद्र को मुसख्खर कर दिया, फिर उसमें कश्तियों को भी क्या है, रवा रवा, यानी कि इंसान को उसके ऊपर से गुजरने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कश्तियां, और फिर बड़ी बड़ी शिप्स, बड़ी बड़ी जो जहाज होते हैं, वो अल्लाह तबारक ताला ने अता फरमाए हैं। और आपको पता है कि सबसे पहली जो कश्ती बनाई वो नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, जिस पर वो सवार हुए, और खुद भी सवार हुए, और सारे के सारे ईमान वाले बंदे भी उसमें सवार हुए। और फिर जो लोग उस पर सवार हुए थे वो बचा लिए गए। फिर अल्लाह तबारक ताला ने बाकी जितनी भी जमीन थी उस सबको पानी में, उनके ऊपर अजाब, पानी का अजाब आया, वो सब के सब खत्म कर दिए गए। आए देखिए, आयत नंबर 45 है। इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत 46, 47 देखिए। इनके पास तो उनके रब ताला की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आई जिससे ये बेरुखी ना बरतते हों। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ दो, तो ये कुफ्फार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो हो ही खुली गलती में। तो यहाँ पर दरअसल आयत नंबर 45 से आयत नंबर 47 तक कुफार की हठ धर्मी का बयान है, कि काफिरों की सरकशी और नादानी, तकब्बुर का यहाँ बयान हो रहा है। जब उनसे गुनाहों से बचने को कहा जाता था तो कहते थे जो कुछ कर चुके हैं और उस पर वो शर्मिंदा तुम हो जाओ, और उनसे तौबा कर लो, और आइंदा इससे क्या है, बचने की कोशिश करना। तो उसके नतीजे में अल्लाह तबारक ताला तुम पर क्या करेगा, रहम करेगा, तुम्हें अजाबों से बचा लेगा। तो वो उस पर कार्बन होना तो एक तरफ, और मुंह फुला करके और मुंह चढ़ा करके कुरान के इस जुमलों को बयान नहीं किया, क्योंकि ना आगे जो आयत आ रही है वो इस पर साफ तौर से दलालत करती है। इसमें यही एक बात, क्या उनकी आदत तो हो गई थी कि अल्लाह ताला की हर बात से वो मुंह फेर लेते, और ना वो तौहीद मानते, ना वो रसूलों को सच्चा जानते, ना इनमें जो है ना रसूलों की इताअत करते, ना वो ईमान कबूल करते। और यहाँ तक कि उन्होंने रसूलों को झुटलाया, रसूलों के साथ क्या है, उनको कत्ल करने की भी सारी की सारी प्लानिंग की। और जब उनसे कहा जाता था कि तुम गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों को दो, तो उनको जब कभी राह अल्लाह ताला की राह में खैरात करने को कहा जाता तो अल्लाह ताला ने जो
تمہیں دیا ہے، تم فقراء مسکینوں محتاجوں کو بھی حصہ دو۔ تو وہ جواب دیتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو غریب ہی کیوں پیدا کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ دولت مند ہی پیدا کرتے، تو غریبوں کو ہی اللہ تعالیٰ خود کھلا پلا دے، کیا ہے ہم نہیں دینے والے اس طرح سے۔ یہ غریبوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فی سبیل اللہ دینے کو کہا یہ نہیں دیتے تھے، کنجوسی کرتے تھے اور پھر اسی طریقے سے بہانے بناتے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 48۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی جھگڑے میں ہوں گے۔ آیت 50۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ آیت 51۔ سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں میں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ آیت 52 دیکھیں، کہیں گے کہ ہائے ہائے، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ آیت 53 54 دیکھیں، یہ نہیں کہ مگر ایک تند آواز کی یکایک سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ دراصل جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے اور مذاقیہ طور پر اس کا مطالبہ کرتے تھے، تو ایسے کافروں کے بارے میں یہ آیت یہاں پر اس کا پس منظر ہے، آیت 48 سے آیت 54 تک۔ کیونکہ کافر نا قیامت کے آنے کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ نبیوں اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ پھر قیامت کو لاتے کیوں نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اٹھائے گا، کھڑا کر دے گا، اچھا تو یہ تو بتلاؤ کہ کب وہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اس کے آنے کے لیے کیا ہے، پل بھر میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ قیامت کب واقع ہو جائے، کہ تم بس کھا رہے ہوگے اور قیامت آ جائے گی، تم لقمہ اٹھا نہیں سکو گے، تم کیا ہے بس قیامت واقع ہو جائے گی، تم بازار سے چل پھر کے لوٹ بھی نہیں آ پاؤ گے، قیامت واقع ہو جائے گی، پل بھر میں قیامت واقع ہو جائے گی۔ صرف ایک مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا، دنیا کے لوگ روزمرہ کی طرح اپنے اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو لوگ ادھر ادھر گرتے پڑتے شروع ہو جائیں گے، اس آسمانی تیز تند آواز سے سب کے سب کیا ہے محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے۔ اس چیز کے بعد کسی کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کسی سے کچھ کہہ سن سکے، کوئی وصیت کوئی نصیحت کر سکے، اور نہ پھر انہیں اپنے گھر والوں کی طرف واپس جانے کی طاقت ہی رہے گی۔ پہلا نفقہ ہوگا اور پھر دوسرا نفقہ ہوگا، جس کے پہلا نفقہ ہوگا سب کے سب کیا ہے سب مر جائیں گے، دوسرا نفقہ ہوگا سب کے سب اٹھا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو ان آیتوں میں دوسرے نفقے کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے کیا ہے مردے جب سارے کے سارے مردے قبروں سے نکل آئیں گے، مردے جی اٹھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں قبروں میں سے اٹھنے کا ہمیشہ انکار رہتا تھا نا، تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں ہمارے خواب گاہوں سے کس نے نکال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا ہے عذاب ہی نہیں ہو رہا تھا، ان کے لیے بہترین بستر لگے تھے، بہترین وہ آرام سے سو رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھیانک منظر دیکھ کے قیامت کا، اتنے بڑا عذاب کا دن وہ دیکھ کر کے انہیں اپنی جو قبر والی جو عذاب والی قبر ہے وہ ان کو آرام گاہ لگے گی، اتنا بھیانک منظر قیامت کا ہوگا۔ مفسرین اس کا ایسا مطلب بتاتے ہیں۔ تو انہیں قبروں سے جی اٹھنے کا ہمیشہ سے انکار بھی رہا، جتنے بھی یہ کفار تھے، تو اس لیے آج یہ حالت دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہے، ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھایا ہے۔ تو اس سے قبر کے عذاب نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جس ہول و شدت کو، جس تکلیف اور مصیبت کو وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کی بانسبت قبر کا عذاب ان کو کم محسوس ہوگا، گویا کہ وہ آرام میں تھے، جس کا یہ مطلب ہے۔ تو کہیں گے کہ ہائے ہماری قبروں سے کس نے ہمیں جگا دیا، ہمارے خواب بہت سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، تو یہ کفار لوگ ایسے بولیں گے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 55 ہے۔ اہل جنت پر انعامات کا ذکر ہے، آیت 55 سے 58 تک کی۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش اور بشاش ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو بھی وہ کچھ طلب کریں گے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ جنتی لوگ میدان محشر سے فارغ ہو کر جنت میں بس با اکرام اور عزت کے ہزاروں
تعظیم کے ساتھ پہنچائے جائیں گے، اور وہاں کی ان گنت نعمتوں اور راحتوں میں اس طرح وہ مشغول ہو جائیں گے، کسی اور طرف ان کا دھیان ہی نہیں جائے گا اور نہ کسی طرف ان کا خیال جائے گا۔ یہ جہنم اور جہنم والوں سے بے فکر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہوگا؟ سلام ہی سلام ہوگا۔ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا، سلام قولم من رب الرحیم، کہ اب پروردگار کی طرف سے، مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ اہل جنت کے لیے سلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ اوپر کی طرف سے ایک نور چمکے گا، یہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنتی۔ یہی معنی ہیں اس آیت کے سلام قولم کے، کہ جنتی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا۔ کسی نعمت کی طرف وہ اس وقت آگ بھی نہیں اٹھائیں گے یہاں تک کہ حجاب حائل ہو جائے گا اور نور برکت ان کے پاس باقی رہ جائے گی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 59 ہے۔ اے گناہگارو، آج تم یکسو ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ آیت 60 اور 61 62 دیکھیں۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ قول و قرار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری عبادت کرتے رہنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو قیامت کے دن نیک کار اور بدکار میں کیا ہے؟ فرق ہو جائے گا۔ آیت 59 سے 62 تک کی جو نیک کار ہیں اور بدکار ہیں ان سب کو کیا ہے؟ چھاٹ پٹک کر الگ کر دیا جائے گا۔ کافروں سے کہہ دیا جائے گا کہ مومنوں سے تم الگ ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، اور پھر انہیں امتیاز دیا جائے گا اور انہیں الگ کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو نیک کار ہے انہیں عزت اور امتیاز دیا جائے گا، اور جو بدکار ہیں ان کو ذلیل خوار کر دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 63۔ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا۔ آیت 64 65 دیکھیں۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہوں پر مہرے کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ آیت 66 67 بھی دیکھ لیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، کہ نہ وہ چل پھر سکتے نہ وہ لوٹ سکتے۔ تو مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ یہ پس منظر ہے آیت 63 سے 67۔ جہنم بھڑکتی ہوئی ہے اور شعلے مارتی ہوئی چیختی ہے اور چلاتی ہوئی سامنے جب آئے گی تو کفار سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر میرے رسول کیا کرتے تھے، جس سے وہ ڈرایا کرتے تھے، اور تم انہیں جھٹلاتے تھے، لو اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ تو قیامت کے دن جب یہ کفار اور منافقین اپنے گناہوں کا انکار کریں گے اور اس پر وہ قسمیں کھا لیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو زبانوں پر کیا کریں گے؟ ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور ان کے بدن کے حصے سچی گواہی دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں تو انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کی توحید پر نہیں وہ قائم ہوئے اور رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ پھر قیامت کے دن کیا کریں گے؟ وہ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کے کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو دنیا میں اچھے اچھے کام کیے تھے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے منہوں کو کیا کریں گے؟ بند کر دیں گے، زبانیں بند کر دیں گے، پھر ان کے بدن گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ کیا چیز سب سے پہلے گواہی دے گی؟ انسان کی ران اور ہتھیلی۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نمازی پڑھی، اور اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف وہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو۔ پھر اس کی ران اور اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی۔ یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں بڑا ہی ذکر کرتا رہتا ہے
कि हाँ बाजी हमने तो हज भी कर लिया, हाँ बाजी हम नमाज पांचों टाइम की पढ़ते हैं। अगर तहज्जुद भी कभी पढ़ रहा होता तो फौरन वो उसको भी वो शो ऑफ कर देता कि भाई हमारी एक दिन की तहज्जुद नहीं कज़ा हुई है, ठीक है। इसी तरीके से अपने सारे नेक अमाल का दुनिया में तो बड़ा जिक्र करता है, लेकिन कयामत के दिन ज्यादा देर झूठ नहीं बोल सकेंगे। जो उसके अमल होंगे वो वैसे ही उसके सामने आ जाएंगे, और जिनको वो अपनी नेकी बता रहा होगा वो नेकी नहीं, दरअसल बदनीयती से कोई और गलत काम किए जो होंगे वो सब के सब खुलकर सामने आ जाएंगे, ठीक है। दुनिया में लोगों से कहता था हम फला फला नेकी का काम करते, लेकिन और या तो उसकी नियत में खोट था या फिर उसको शो ऑफ करना था, तो फिर आखिरत में वो सारा के सारा जो काम है खुल करके सामने अल्लाह तबारक ताला रख देगा, और आज़ाब बोले पड़ेंगे, आज़ाब बोल रहे होंगे, हमारे हाथ पैर स्किन सब कुछ बोल रही होगी। तो आप सोचिए कि उस वक्त का आलम किस कदर शर्मिंदगी। दुनिया में सारे टाइम लोगों से ढिंढोरा पीटा कि हम ये नेकियां करते हैं, हम ये नेकियां करते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन जब आखिरत में सारे लोगों के सामने सब के सब का सारा राज सब कुछ खुल गया, है ना। तो आप देखिए कि जब एक इंसान है ना एक बात कह रहा होता है वो बड़े यकीन के साथ दूसरा उसको झुटला रहा होता है, और यहाँ तो ये है कि दूसरा नहीं बल्कि खुद इंसान का अपना वजूद है, उसके हाथ पैर पांव स्किन उसके खिलाफ गवाही दे रही है। तो जरा सोचे कि किस कदर शर्मिंदगी की बात होगी ना, किस कदर शर्मिंदगी और रुसवाई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको आखिरत की और दुनिया की रुसवाइयों से बचा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारे हाथ पैर हमारे हक में गवाही दे, हमारे खिलाफ ना ही हुज्जत बने, आमीन या रब्बल आलमीन। आगे देखें, आयत नंबर है 68। जिसे हम बुरा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर लौटा देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे पैदाइशी हालत की तरफ लौटा देते हैं, क्या फिर भी वो समझते नहीं, क्या अकल में से वो काम लेते हैं। अफला याकिलून, क्या वो तुम अकल से काम नहीं लेते हैं। तो जवानी और बुढ़ापे का यहाँ पे जिक्र है आयत नंबर 68 से 70 तक की। आयत नंबर 69 और 70 देखें। ना तो हमने उस पैगंबर को शायर सिखाया है और ना उसके लिए लायक है, वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़ेह कुरान है, ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा और काफिरों पर हुज्जत साबित हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की जवानी ज्यों त्यों ढल जाती है यहाँ पर उसका जिक्र फरमाया है, और यहाँ पर इंसान की अकल को अल्लाह तबारक तआला ने गौर फिक्र दिलाया है कि जो आज जिस जवानी पर, जिस ताकत पर, जिस तुम सेहत पर तकब्बुर कर रहे हो, गुरूर कर रहे हो, तो देखो जरा कि जिसे अल्लाह तबारक तआला ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे अल्लाह तबारक तआला ने बूढ़ा करा और फिर उसे पैदाइशी हालत की तरफ लौटा दिया, तो फिर क्या तुम अकल नहीं रखते, तुम अकल नहीं रखते। तो इंसान की जवानी जो जो ढलती जाती है, बुढ़ापा, ज़ईफी, कमजोरी, नातवानी आती जाती है। जैसे कि ना सूरह रूम की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 54 में कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, यानी कि अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें नातवानी की हालत में पैदा किया, फिर नातवानी के बाद ताकत अता की, फिर ताकत और कुव्वत के बाद ज़ौफ़ और बुढ़ापा कर दिया। वो तो चाहता वो तो जो चाहता है वो पैदा करता है, और अल्लाह तबारक तआला खूब जाने वाला है, खूब कुदरत रखने वाला है। तो आप देखिए कि हम सबके सामने ना कितने ही बुजुर्ग ऐसे थे जो क्या थे, वो बूढ़े थे हमारे सामने। हम सब ने अपनी नानी नाना दादा दादी चाचा फूफी सबको देखा होगा ना। सब एक वक्त था कि वो जवान थे, वो यंग थे, और हम सब बच्चे थे। लेकिन आज वो दौर हो गया कि वो बूढ़े हो गए हैं और हम क्या हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं। तो ये एक समय का क्या है, वक्त का एक पहिया है जो घूम रहा है। हर उस शख्स को इससे गुजरना है, बुढ़ापे से गुजरना है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको हमने देखा है और वो बूढ़े हो चुके हैं, या वालिदैन हैं, या अपने 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 सास ससुर हैं, या नाना नानी, या दादा दादी, उनकी कोई भी आपने देखा होगा कि कैसे वो जवान थे, ये जवानी की हालत में कितने ज्यादा एक्टिव थे, ताकतवर थे, और फिर भागते थे, दौड़ते थे, दुनिया के सारे काम करते थे। फिर लेकिन किस तरह से वो उनको बीमारियों ने आ घेरा, और फिर धीरे धीरे उनका जो है जिस्म या बॉडी काम करना कम कर दिया। फिर उनको किसी को अल्जाइमर हो गया, किसी को फॉलिश का अटैक हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हाई हो गया, किसी को हार्ट पेशेंट। तो फिर क्या है, एक वक्त हो गया कि वो अब एकदम कमजोरी की हालत में चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे ये कमजोरी जैसे वो लालटेन में क्या होता है, दिया बुझने लगता है तो फिर क्या होता है, बिल्कुल लाइट स्लो हो जाती है। तो वही बुढ़ापे में होता है कि इंसान के अंदर ताकत की जो लौ होती है वो बिल्कुल कम होती 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 फिर क्या आखिरी में बुझ जाती है।
तो सबको इस जो है ना स्टेज से गुजरना है, बुढ़ापे से। तो ये सारे मनाजिर सबक सीखने के लिए हैं। इनमें से हमें क्या है, अपना हमें जायजा लेना चाहिए, और हमें अपना फ्यूचर अगर हम देख रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इन तमाम आजमाइशों और बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर है 71। क्या वो ये नहीं देखते कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चौपाए जानवर भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए। आयत 72 देखे, और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे फरमान बना दिया है, जिनमें से कुछ तो उनकी सवारियां हैं और कुछ का गोश्त खाते हैं। आयत 73 74, इन्हें उनसे और भी बहुत से फायदे हैं, खुसूसन खुसूसन दूध का पीना। क्या फिर भी ये शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? आयत 74 75 76 देखे, अल्लाह ताला के सिवा दूसरे को माबूद बनाने में इस ख्याल से उनकी मदद की जाए, यकीनन इनमें इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी है। बस तुझे उनकी बात गमनाक ना करे, हम उनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बाखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अल्लाह तबारक ताला की जो नियामतें हैं उनका जिक्र फरमाया है कि अल्लाह ताला का जो नियामत है बंदों बंदों के ऊपर इनाम है, तो ये जानवरों की पैदाइश है। अल्लाह ताला ने अपने इनामात और एहसान का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह तबारक ताला ने चौपाए पैदा किए जो इंसान की मिल्कियत में दे दिए, और एक छोटा सा भी बच्चा है आप देखें, और कितने कई कुंटल जो ऊंट होता है उसकी नकेल वो थाम लेता है, और फिर ऊंट भी क्या है छोटे से बच्चे के हाथ में मुसख्खर अल्लाह तबारक ताला ने कर दिया है। तो ये अल्लाह तबारक ताला का एहसान है कि बड़े से बड़ा कवि जानवर और बड़े से बड़ा ताकतवर जानवर एक मामूली से इंसान के अल्लाह तबारक तआला ने उसके लिए मुसख्खर कर दिया। मुसख्खर हो गए सारे के सारे बड़े से बड़े हाथी, चाहे ऊंट हो, चाहे ये बड़े से बड़े जो जानवर हैं, वो सब के सब एक मामूली से छोटे से इंसान के अंडर में अल्लाह तबारक तआला ने दे दिए हैं। तो ये अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, और फिर इससे बहुत सारे फायदे हैं, हर तरह की नियामतें मिलती हैं। दूध है, खास करके इन सबसे सबसे जो बेहतरीन चीज़ हमें मिलती है वो दूध है, फिर गोश्त है, फिर गर्म लिबास वगैरह है, फिर इसकी जो चमड़े से, और फिर आप देखिए कि इस बहुत सी जगह इससे ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है। पहाड़ों वगैरह पर जहाँ पर ये फोर व्हीलर वगैरह नहीं जा सकती, तो वहाँ पर इनसे जो ये ट्रांसपोर्ट का भी काम होता है। जैसे अब ऊँट है तो रेगिस्तान में कुछ जगहों पर ये गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल पाती, फोर व्हीलर नहीं चल पाती, तो वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। पेट्रोल खत्म हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन ये जानवर कभी नहीं रुकते हैं ना। तो ये भी अल्लाह तबारक तआला की क्या है, निशानियां हैं। अल्लाह तबारक ताला की जो नियामतें हैं इनको पाके इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अब देखिए कि दूध, जिसके बगैर हमारा क्या है सवेरा नहीं होता, चाय अगर नहीं मिले इंसान या कॉफी ना मिले इंसान को तो उसका मॉर्निंग ही नहीं होती ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अल्लाह तबारक ताला की नियामतों से। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें हर नियामतों को पा करके। आयत देखिए, आयत नंबर 77 है। क्या इंसान को इतना भी नहीं मालूम है कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर भी वो तो सरी झगड़ालू बन बैठा है, और हमें बातें मानने लगा और अपनी असल पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि इन सड़ी गली हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है। आयत 78 79 देखें। तो जवाब दे कि उन्हें वो जिंदा करेगा जिससे इन्हें पहली बार पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बाखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम और आग सुलगाते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर ऐसे लोगों का जिक्र फरमाया है जो आखिरत का इनकार करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ये आयतें यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं कि इंसान का ध्यान इधर ला रहे हैं कि वही पहली बार जिसने वही तुमको पैदा करेगा जिसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया है, वो तुमको दोबारा फिर पैदा करेगा, और वो इस पर कादिर है। उबई बिन खलफ मलून एक बार अपने हाथ में एक बोसीदा खोखली सड़ी हुई हड्डी लेकर आया, और उसको अपनी चुटकी में मलते हुए उसको मरते हुए, जबकि उसके जो रेजे थे हवा में उड़ रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि आप कहते हैं कि इन हड्डियों को अल्लाह तबारक ताला जिंदा कर देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला तुझे हलाक कर देगा और जिंदा करेगा, फिर तेरा हशर जहन्नम की तरफ होगा।
और इसी मौके पर इस सूरत की ये आयतें नाजिल हुई। तो जो भी शख्स है दूसरी जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी का इनकार करता है, तो उसे जवाब है, मतलब ये है कि इन लोगों को चाहिए कि अपनी शुरू की पैदाइश पर गौर करें, जिसने एक हकीर और जलील कतरे से इंसान को पैदा कर दिया, हालांकि इससे पहले वो कुछ भी नहीं था, काबिल जिक्र भी नहीं था। तो फिर अल्लाह तबारक ताला एक इंसान जो मर गया, पैदा हुआ और उसको बड़ा हुआ, फिर उसकी क्या है, राख है, हड्डियां हैं, उसकी बची हुई, तो इस तरह अल्लाह तबारक ताला कादिर है कि उसको वो पैदा कर दे, उठा के खड़ा कर दे। तो मुस्नद अहमद की हदीस में से है कि एक बार हजरत हुजैफा रजी ताला से उकबा बिन अम्र ने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कोई हदीस सुनाइए। तो आपने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स पर जब मौत की हालत तारी हुई, तो उसने अपने वारिसों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो बहुत सारी लकड़ियां जमा करके मेरी लाश को जलाकर खाक कर देना, फिर उसे समंदर में बहा देना, फिर मतलब कि सब तरफ उस राख को बहा देना। चुनाचे उन्होंने यही कहा, तो यही किया, तो अल्लाह ताला ने उसकी जो राख जमा करके उसे दोबारा जिंदा किया। तो उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया है? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि सिर्फ सिर्फ तेरे डर के खातिर अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया, उसे बख्श दिया। तो अल्लाह तबारक ताला से इतना उसको डर पैदा हुआ कि उसने अपने बच्चों को वसीयत कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता जला देना, और फिर जलाने के बाद मेरी जो हड्डियां हैं उसको भी क्या है, उसको चारों तरफ उसकी राख उड़ा देना। लेकिन अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर कादिर है। हवा से, पानी से, रेजे से, जमीन मिट्टी की जमीन की रेजों से उस शख्स की जो राख थी इकट्ठा करके अल्लाह तबारक ताला ने उसको फिर से उठा के खड़ा कर दिया। तो इससे ये बात पता चलती है अल्लाह तबारक ताला क्या है, हर चीज पर कादिर है। तो ये हदीस सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और वो इस पर भी कादिर है कि इंसानों को उठा करके दोबारा खड़ा कर दे। तो लेकिन अक्सर जो लोग थे, जो कुफ्फार थे, जो इनकारी थे क़यामत के और आखिरी आखिरी जिंदगी के इनकारी थे, उन्होंने हमेशा रसूलों की बात नहीं मानी और इसी चीज का इनकार किया कि अल्लाह आखिरत में कैसे दोबारा इकट्ठा करके इंसान को खड़ा कर देगा। तो उन्हीं का यहाँ जवाब है। आयत देखें, आयत नंबर 81, 82 और 83। जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, क्या वो उन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही तो पैदा करने वाला दाना है। वो जब कभी किसी चीज का इरादा करता है तो इतना फरमा देता है, फरमा देना काफी है कि हो जा, वो उसी वक्त बस हो जाता है। बस पाक है अल्लाह ताला जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ सब के सब लौटाए जाएंगे। तो अल्लाह ताला अपनी जबरदस्त कुदरत का बयान फरमा रहे हैं कि उसने आसमान को और उसकी सब चीजों को पैदा किया, जमीन को, उसके अंदर की सब चीजों को भी उसी ने पैदा किया है। फिर इतनी बड़ी कुदरत वाला और इंसान जैसी छोटी मखलूक को पैदा करने से क्या वो आजिज आ जाएगा? तो ये अकल के खिलाफ है। ये इंसान इतनी सी मामूली सी चीज नहीं समझ सकता कि जब जो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को जब बना दिया, पहली पहली तरह यानी कि इब्तिदा से बनाया, जब वो उसका कोई भी नामो निशान नहीं था, और फिर उसको नुत्फे से, फिर उसको अदगा मुल्का, और फिर जो गोश्त, फिर उसको हड्डी, और फिर उसके ऊपर ढांचा, और फिर एक छोटा सा बेबी, और फिर माँ के रहम से बच्चा पैदा हो जाता है ना। तो काबिल जिक्र भी एक वक्त तो उसके ऊपर वो दौर गुजरा कि वो उसका काबिल जिक्र भी नहीं था। अल्लाह ने उसको जब पैदा कर दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अल्लाह तबारक ताला एक इंसान है उसको दोबारा फिर से खड़ा कर दे। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, हर चीज बनाई, एक मामूली सी इंसान बनाने पे अल्लाह तबारक ताला कादिर हैं। इस पर हम सबका बिल्कुल पक्का वाला यकीन होना चाहिए, जरा सा भी इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हम सबको दोबारा उठा के खड़ा कर देगा। यही ईमान है, ईमान बिल गैब है। तो अक्सर जो मुनकरीन इस्लाम थे उन्होंने इसी चीज का इनकार किया। तो बस अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबके ईमान और अमल में बढ़ोतरी अता फरमाए, हम सबको अल्लाह तबारक ताला ईमान की दौलत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।